6 Sri Suresh. Sir, question number 106. माननीय मंत्री जी, is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Honourable Speaker, sir, this is a very, very important question, sir, regarding the pollution of this country. So the latest urban air quality database released by World Health Organization reconfirmed that most Indian cities are becoming death traps due to the very high air pollution levels. India appears among the group of countries with the highest particulate matter PM levels. Also, its cities have highest level of PM10 and PM2.5, causing serious health hazards for the population, especially children and elderly. When compared to the other cities, combating the air pollution must become the national priority, as it the future of the nation more than the effect of any calamity. By taking account of gravity of the matter, I would like to ask the Minister through you, sir, whether the government is aware of the reports concern dangerously high level of particulate matter in various levels, various cities, and 1 out of every 7 deaths in India was attributable of air pollution as per reports. Sir, this is very important question. Government realizes and has started taking action very vigorously on air pollution, because ultimately air pollution has relation to your ailments, lungs and otherwise. What I'll not give comment right now on the world reports, because there is much to be read in between the lines. ये एक अच्छी खबर है, हमने 5 बेसिक डिसीजंस लिए हैं टू टैकल विथ एयर पोल्यूशन. फर्स्ट इज दैट द व्हीकल पोल्यूशन हैज टू बी कंटेंटेड ऑन इमीडिएट बेसिस. वी हैव already launched BS, preponed BS6 launch. We have skipped BS5, and we are giving now clean fuel in Delhi from this year and throughout the country from next year. Then next year BS6 compliant vehicles are also coming. That will reduce 90% vehicular pollution. We are sitting in Delhi, sir. 20 years, though peripheral ways, highways were not built, but now they have been built completely in 4 years, and last patch will be done this year. And so 60,000 vehicles which were coming to Delhi just to pass through Delhi are not now coming to Delhi, and that kind of pollution is reduced. We have closed Badarpur thermal power, क्योंकि हमें एक समझना चाहिए कि थर्मल पावर स्टेशन पहले कल्पना ये थी कि शहर के बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन अब ये नई सोच है कि वहाँ प्रदूषणकारी कुछ नहीं चाहिए, तो बदरपुर थर्मल प्लांट हमने बंद कर दिया. हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स 3 शुरू किए 3 साल में, और ये जो स्टबल बर्निंग का इशू है जो महत्वपूर्ण है, पंजाब में हरियाणा में होता है तो उसकी धुआं आता है दिल्ली में, तो उसके लिए भी 5 राज्यों का कोऑर्डिनेशन कमेटी किया है, और उसका परिणाम हुआ है कि अभी नेक्स्ट मंथ भी मैं बैठक बुला रहा हूं अधिवेशन समाप्त होते ही, कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी इकट्ठा कर जो हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है उसको अमल की रिव्यू करके, और क्योंकि ये नवंबर में होता है ज़्यादा, तो उसके लिए अभी से करेंगे. एक बहुत काम किया है, सारे इंडस्ट्रीज़ को जो प्रदूषणकारी है उनको ऑनलाइन मॉनिटर्स बिठाए हैं, और मेरे केबिन में कभी भी आइए, आपको हर इंडस्ट्री का प्रदूषण कितना हो रहा है, एमिशन कितना हो रहा है, उसका आपको मॉनिटर हर 15 मिनट में हर कंपनी का रिपोर्ट आता है. देश भर के 3,500 कंपनियों को ऐसा मशीन बिठाया है. उसके साथ साथ सभी ब्रिक क्लीन्स जो थे ऑल हैव बीन शिफ्टेड टू जिगजैग टेक्नोलॉजी, तो जो ईंट भट्टों से जो प्रदूषण होता था वो भी खत्म हुआ है. और इस सब का परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे हैं, मैंने जवाब में दिया है, लेकिन 1 मिनट
आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एक उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि जिसके कारण ईंट भट्टों का प्रदूषण खत्म होता है। हाँ, समझने के लिए ये भी काफी। तो एक ऐसा है कि इसका परिणाम, सुरेश जी, व्हाट यू आस्क इज दैट PM10 has increased and that's a real worry. But let me tell you with confidence, in last 3 years in city of Delhi, because every city has different PM10 level, 2.5 level, 16% कमी आई है PM10 लेवल में, और दिल्ली में PM2.5 जो फाइन पार्टिकल्स है उसमें 15% की कमी आई है, और जो गुड, मॉडरेट एंड सेटिस्फैक्टरी यानी जिसमें हवा की तबीयत ठीक है, ऐसे जो दिन है वो पहले 106 थे 2016 में, 17 में 152 दिन हुए, और अब 159 दिन हुए, 159. So number of good days are increasing. That's a good news for environment. माननीय सदस्य, Whether the government is further aware of the World Health Organization report that exposure to particulate matter contributes the risk of development cardiovascular and respiratory disease as well as lung cancer, and cite details of action taken to reverse the air pollution and controlling accelerating factors causing pollution in the country. Actually, I have narrated and I have given in reply all the measures taken by the government, but importantly, let me tell you कि दुनिया में ये प्रॉब्लम है. This is a global problem, not India और दिल्ली प्रॉब्लम. और दुनिया के यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, लोग प्रदूषण की चर्चा करते हैं, और वहाँ ओजोन का प्रदूषण है, कहीं नॉक्स का है, कहीं सॉक्स का है. एक मिनट, 1 minute. No, let us understand that this is a global phenomena. World is fighting. We are part of the global solution, and therefore we have taken measures. So the result is PM 2.5 that causes really the problem, to chest problem. So 2.5 has been reduced by 15% in 3 years. If we continue with this speed, I am very sure, because in Delhi also the problem aggravated since 2007, but action started since 2014. श्री वरुण गांधी, Construction dust accounting for about 45% of all air pollutants in the National Capital Region. My question through you to the Honourable Minister is whether the government plans to expand the scope of green building ratings to include adherence to environmentally sound construction processes for buildings thereof. ये बहुत अच्छा सुझाव है. ग्रीन रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा नए भवन का निर्माण ये पर्यावरण पूरक हो, उसके लिए उन्होंने नए मानक बनाए हैं. अगर 5000 मीटर का भी करोगे तो भी कुछ पर्यावरण के पूरक काम करने पड़ेंगे. 20,000 मीटर का है तो भी करने पड़ेंगे. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे पर्यावरण के नियम और ज़्यादा पालन करना होगा. So that is what we are doing. And construction and demolition waste, we have formed these rules for the first time in independent India. When I went to see a metro tunneling work, I could realize that they are tunneling huge quantity of dust every day, but there is no sign anywhere that dust has been done. So I took from them, from metro, all the rules they are managing for how they take and transport all the dust, and those rules are now notified into construction and demolition waste. And we are making pavements and sidelines and many other parts from construction demolition waste. We are now going to implement it very strictly. NGT has also asked all chief secretaries to take immediate action on construction demolition waste. Your suggestion is very good, and we are going ahead with that. श्री गौरव गोगोई, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आप लिखित में दे दीजिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय के उत्तर में ये लिखा है कि साल भर में जितने पुअर से सीवियर डेज हैं जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो लगभग 2018 में 2006 दिन ऐसे थे.
जब ऐसे गंभीर वातावरण थी कि सांस लेना भी मुश्किल है, एयर क्वालिटी पुअर से सीवियर है। तो आज भी अगर साल में देखें तो सब ज़्यादातर दिन जो एयर क्वालिटी है, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, 2006 है जब PM 2.5 लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और सर, मेरा सौभाग्य है कि मैं एक पिता बना 2 साल पहले, और आज मेरी जो चिंता है वो लाखों परिवारों की चिंता है कि आज दिल्ली शहर में बच्चों को पैदा करना, बड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ लाखों माताओं और पिताओं के हित में कि जब बहुत से सीवियर डेज हैं, जब बहुत सीवियर डेज है, जब घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं है, जो भी मेडिकल एडवाइजरी आती है वो मेडिकल एडवाइजरी भी यही कहते हैं कि आप घर के अंदर रहिए। तो क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई प्रक्रिया सोच रही है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण सीवियर प्लस या इमरजेंसी होता है तो आप एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी करें कि सारे नागरिक उस दिन, उन 2 दिनों के लिए, क्योंकि सीवियर इमरजेंसी है, घर के अंदर रहें, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन, CPWD, सैनिटेशन, MCD, क्या उनको बचाने के लिए क्या उनको एयर क्वालिटी मास्क आप देंगे, एक ऐसी स्कीम निकालेंगे ताकि जो हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन हैं जो आज भी गाड़ी के वो धुआं ले रहे हैं अपने लंग्स में, उनको बचाने के लिए क्या आप एयर क्वालिटी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा कोई स्कीम लेंगे? धन्यवाद। गौरव गोगोई जी ने बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन लेट मी एश्योर, क्या स्थिति है 200 दिन अभी पुअर या सीवियर स्ट्रेस में है, लेकिन ये 2016 में 246 दिन ऐसे होते थे, 2017 में घटकर 213 हो गए, अब 206 है। मैंने जैसे कहा कि हवा की तबीयत ठीक है, ऐसे दिन बढ़ रहे हैं, खराब है, ये कम हो रहे हैं, तो इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम का रूप जो हमने लिया है और कॉम्प्रिहेंसिव उपाय किए हैं वो है। एक मैं बताना चाहता हूँ कि आप तो विदेशों में भी घूमे हो, आपने शंघाई भी गए हो या आप बीजिंग में भी गए हो, तो आपने देखा है वो स्मॉग लाइक सिचुएशन अपने यहाँ दीपावली के दिनों में, तो उसके लिए फायर क्रैकर पर पाबंदी आ गई और बच्चों में भी अब जागृति हो गई, वो अब नहीं मांग रहे हैं। और दूसरा, एक जो स्टबल बर्निंग का इशू है, इसमें भी 15% कमी आई है, और इस साल और किसानों को मदद देके ये स्टबल बर्निंग कम होगा, ताकि ये दिन कम होंगे, ये हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त।